Hello students, welcome back. Okay, since we have already completed in polynomials, we have completed 3.1, 3.2 पूरा complete कर लिया था हम लोगों ने. 3.3 we have to start. Okay, so before starting 3.3 is based on synthetic division and division with linear method. So these two methods, let's get the introduction of these methods. Okay, synthetic division is something which we have done in our standard 7th and 8th also. Okay, synthetic division you are already aware of. सिंथेटिक डिवीजन. ओके, याद आया कुछ? ऐसा कुछ देखा था, फिगर देख के, डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है? ओके, चलो. नाउ द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, whereas in the guide Navneet we have a perfect elaborated diagram where I can explain you what is synthetic division. So let's take the help of that particular diagram. Okay, सो फिलहाल थोड़ा टाइम के लिए हम लोग डायरी साइड में रख देते हैं अपना नोटबुक एंड विल स्टार्ट विद सिंथेटिक डिवीजन, द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द टू पॉलिनोमियल्स व्हिच दे हैव कंसिडर्ड ओवर हियर इज, दिस इज द डिविडेंड 3x रेज टू 4 दिख रहा है, 3x रेज टू 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 7. We have to divide with x by x plus 2. We have to divide by x by 2. So this is your divisor and this number will be called as your dividend. Okay, but is the dividend in standard form or index form? It is in standard form but not in index form. Okay, so index form mein we have to balance all the indices in the reducing power. So first convert it into index form. It will become 3x raised to 4. The same question they have written over here. Let's come to indices part directly. What it will happen? 3x raised to 4 as it is, क्यूब टर्म नहीं है तो 0x क्यूब डालो, माइनस 9x स्क्वायर एज इट इज, प्लस x टर्म नहीं है तो 0x डाल दो, माइनस 7. हो गया इंडेक्स फॉर्म. नाउ फ्रॉम द इंडेक्स फॉर्म डिराइव द कोएफिशिएंट्स. तो विल गेट द कोएफिशिएंट फॉर्म. तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? 3 0 माइनस 9 0 माइनस 7 बराबर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट्स, नॉट करली ब्रैकेट. सेट्स नहीं है, राउंड ब्रैकेट. भूल जाओ करली ब्रैकेट्स, अभी आपको पूरा टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं नहीं आने वाला, किसी लेसन में नहीं आएगा. ओके, सो हियर द डिवाइजर x प्लस 2. ओके, हेंस वी हैव टू टेक द ऑपोजिट ऑफ दिस. व्हाई? बिकॉज वी आर, सिंस वी आर गोइंग टू डिवाइड द कोएफिशिएंट, we will need the value of x. Since x plus 2 is equal to 0, therefore x is equal to minus 2. Just taking the opposite number is not the correct explanation, but we have to use the value of x to get the quotient. Okay, so we'll use the divisor part. X plus 2 is equal to 0, therefore x is equal to minus 2. बराबर है. So now in synthetic division this minus 2 will become your divisor. क्या हो गया? डिवाइजर. बराबर. एंड the dividend you have to write in the coefficient form, that is 3 0 minus 9 0 minus 7. Okay, abhi pay attention here very carefully. Now since the first part we cannot divide, the first, whatever the first coefficient, you have to bring it down as it is, write it down 3, then you have to multiply. This is called division, but all the operations are based on multiplication and addition only. You are using only multiplication and addition operations टू गेट द डिवीजन. ओके, यहाँ डिवाइड हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहा है. वापस देखो ध्यान से, 3 हैज़ कम डाउन. नाउ मल्टीप्लाई 3 विद द डिवाइजर. 3 2s are 6, बट इट इज़ माइनस 2, सो इट विल बिकम माइनस 6. बराबर. माइनस 6, पुट डाउन द माइनस 6 ऑन द बिलो द नेक्स्ट कोएफिशिएंट, दैट इज 0, एंड ऐड देम. 0 प्लस, this is operational plus, we have to add this. Okay, 0 plus minus 6 will be minus 6 only. बराबर है. नाउ माइनस 6 इंटू 2 अगेन मल्टीप्लाई विथ डिवाइजर, कितना हो जाएगा? 6 2s are 12, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो वी विल राइट हियर प्लस 12. बराबर. देखो ध्यान से, तुम लोग को दिख रहा है कि मेरे को नहीं दिख रहा है? बिकॉज मुझको चश्मा है, शायद तुम लोग को दिख रहा रहेगा. ओके, minus 9 and you got here minus 6 6 2s are 12, so we have plus 2 plus 12, sorry. So now add minus 9 and plus 12. what is the अच्छा, तुम लोगों को याद तो रहेगा ना, what is the rule of adding two signs with opposite number? Whenever you are adding two signs of opposite signs,
two numbers of opposite sign, then ignore the signs and subtract the smaller number from the greater number and give the sign of the greater number to the answer. बराबर, ये हम लोग ने कभी पढ़ा था इन द स्टैंडर्ड 6. ये रूल याद है? भूल गया? अगर भूल गया रहेगा तो 100 टाइम लिखाऊंगा तुम लोगों को. Okay, -9 plus 12 becomes 3 positive. Okay, now we have 3 positive over here. So again 3 2s are 6. So 3 2s are 6 and minus will be -6 again. बराबर, since it is -2 plus 3 मल्टीप्लाई किया -6 आ गया. -6 लिखा 0 के नीचे. Add them, again you get -6. Then minus into minus becomes plus. Again you get 12 as plus. Whereas the last coefficient you are having is -7. So 12 minus 7 becomes 5. Okay. So the last whatever number is there, this 5 is your remainder. दिख रहा है? 5 is your remainder. And this is your quotient. कैसा हो सकता है? Now let's say this is constant. This is x term. This is x square term. And this is x cube term. So your answer will be 3x cube minus 6x square plus 3x minus 6. Okay. So this is your quotient. The last answer they have written over here. What जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, ये सेम एक्सप्लेनेशन पूरा इधर दिया हुआ है. ओके, इन केस अगर मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं रहेगा तो 2 बार इसको रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगा, बिकॉज मैंने इतना ईजिली एक्सप्लेन किया है कि दो यू आर इन 9th स्टैंडर्ड एंड यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू दिस कंसेप्ट इन स्टैंडर्ड 8, लेकिन ये मैं अगर किसी 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाऊंगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा अगर उसको टेबल आता रहेगा तो. ओके, दैट इज़ द मेन कैच ओवर देयर, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को तो मार मार के टेबल याद कराना पड़ता है मेरे को. सो व्हाट इज़ योर आंसर? जस्ट सी योर डिविडेंड, दैट इज़ योर क्वेश्चन. ओके, 3x raised to 4 minus 9x square minus 7. This was your question. So how you have to write it? Dividend is equal to, what is the value of dividend? Divisor into quotient plus remainder. बराबर. So you have x plus 2 into your quotient. Quotient क्या आया था अपने को? 3x cube minus 6x square plus 3x minus 6. Remember this form. The answer has also always to be written in this form. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. प्लस रिमाइंडर कितना है था अपना? 5. बराबर है. सो डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस 5, दैट इज योर वैल्यू ऑफ योर डिविडेंड. समझ में आया? दिस रूल इज़ व्हेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग द आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आता पुढे तुम्ही ना आगे तुम लोग एक और दूसरा ये करने वाले हो. You are going to do another method of solving equation that is called as the remainder theorem method, where this particular form of writing dividend and the divisor etc., this particular format will be useful in that remainder theorem. It is very much important. अगर ये तुमको याद नहीं हुआ तो remainder theorem याद नहीं होगा. So here along with synthetic division you also have to memorize, feed it in your brain of writing writing your answers in this form. खाली फक्त क्वेश्चन लिहून आन्सर लिहिलं तर 1 मार्क जाणार आहे. टीचर 1 मार्क्स काट लेगी इफ यू डोंट राइट द आंसर इन दिस फॉर्मॅट. द आंसर हैज़ टू बी रिटन एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो वही फॉर्मेट में लिखा हुआ है. चलो, सिंथेटिक डिविजन समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मेथड. बराबर. ये लीनियर मेथड ऑलरेडी 4 दिन पहले मैंने बच्चे लोग को मीटिंग के अंदर बोला था कि टेक्स्ट बुक का दिया हुआ मेथड है, टेक्स्ट बुक का दिया हुआ मेथड पढ़ो, गाइड का मेथड रेफ़र करो, क्या चीज़ समझ में आता है मेरे को बताओ, और नहीं समझ में आता तो वैसे भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में देने वाला हूँ. बट अभी तक किसी का आंसर आया नहीं मुझको, मतलब मेरे किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया. देखो कितना जीनियस बच्चे लोग हैं, मैं कितने जीनियस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, गाइड में दिया हुआ है, फिर भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरे बच्चे कितने होशियार है. ओके, नाउ एज पर द बोर्ड पैटर्न, नॉट द बोर्ड पैटर्न, तुम लोगों को बोर्ड है नहीं, एज पर द डिसीजन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और द एजुकेशन बोर्ड. ऑफकोर्स इधर बोर्ड तो है, बिकॉज बोर्ड इज गोइंग टू डिसाइड कि तुमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है. ओके, सो लीनियर मेथड बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है. सो वी आर नॉट सपोज टू डू दिस लीनियर मेथड एज पर बोर्ड.
ओके तो लीनियर मेथड टोटली कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से दे हैव कैंसल्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 पूरा कैंसिल किया है उन लोगों ने, जिसके अंदर लीनियर मेथड कैंसिल किया है। पे अटेंशन, व्हाट इज अ क्वेश्चन लाइक डिवाइड ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक मेथड, एंड ये कैंसिल हुआ है ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। लीनियर डिवीजन टोटल कैंसिल कर दिया है। ओके लीनियर डिवीजन के अंदर आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, लेकिन एक भी एग्जाम्पल, सॉरी ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का है। लीनियर डिवीजन समझने के लिए दे हैव गिवन यू 2 एग्जाम्पल, लेकिन दोनों भी एग्जाम्पल अगर बच्चों के समझ में नहीं आया है तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट बुक में भी कुछ स्टेप मिस किया गया है और एक्सप्लेन ठीक से नहीं हुआ है। ओके मेरे बच्चों ने तो अभी तक सब कुछ छान मार लिया रहेगा, टेक्स्ट बुक, गाइड, सब कुछ देख लिया है। किसी किसी के पास टारगेट भी है, चेतना सेल्फ स्टडी भी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है बच्चों के पास, लेकिन किसी भी बच्चे का मेरे को जवाब नहीं आया है। मतलब मैं समझ गया हूँ लीनियर तुमको नहीं आया है इक्वेशन समझने के लिए, और नहीं आया रहेगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन अगर किसी को समझ में आया था तो टीचर्स लोग इसका बड़ा बड़ा क्लासेस वाला भी इसका जब पूरा लेक्चर्स का वीडियो बना के डाला है तो इसका भी वीडियो बना के डाला रहता था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन पॉलिनोमियल्स लेसन के अंदर ज़्यादा करके कहीं नहीं दिखेगा तुम्हारे को, क्योंकि ये लेसन इतना टफ है कि किसी क्लासेस का वीडियो आपको नहीं दिख रहा है यूट्यूब के ऊपर। शायद अपना बडी ट्यूटोरियल का पहला वीडियो रहेगा जो यूट्यूब पे जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ओके सो दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव डन फॉर यू इन माई ओन मेथड। अभी लीनियर मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माई ओन वे। ओके बच्चे लोग, थैंक्स टू यू ऑल, बिकॉज तुम्हारी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा डायरी कुछ इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो हर साल मैं डायरी खरीदता हूँ और डायरी में मुश्किल से 8 या 10 पेजेस यूज़ होता है, बाकी डायरी पूरा रद्दी में फेंकने में ही जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरा लास्ट ईयर का रखा हुआ डायरी पूरा तरीके से यूज़ हो रहा है, सारे पेजेस उसमें फिलअप हो रहा है। ओके लीनियर मेथड आई हैव डन हियर। ओके आई ट्राई टू एस्टैब्लिश सम लिंक बिटवीन, कोशिश कर रहा था फैक्टराइजेशन और लीनियर डिवीजन मेथड के अंदर कुछ लिंक फाइंड करने का, लेकिन नहीं जमा, डजेंट वर्क। तो फाइनली मैंने खुद को बोल दिया भाई फैक्टराइजेशन डजेंट वर्क हियर, सो गो विद द लीनियर मेथड ओनली एंड एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके अभी वन थिंग आई लाइक टू टेल यू, अगर बोर्ड ने नहीं बोला है फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है ऐसा नहीं है। ओके और ना ही मेरे बच्चों के पास है इतना, बट अगर ये लीनियर मेथड आपने नहीं किया सो आपको रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन इज नॉट रिपीटेड इन 10th। ओके रिमाइंडर थ्योरम भी रिपीट नहीं हो रहा है, सिंथेटिक डिवीजन भी रिपीट नहीं हो रहा है इन योर स्टैंडर्ड 10th। ये दोनों चीज़ रिपीट नहीं होने वाला है जो आप पढ़ने वाले हो। लीनियर मेथड भी रिपीट नहीं होता है, बट लीनियर मेथड इज अ मेथड रिलेटेड टू सम problems over there in your 10th standard. These problem will give you an insight for solving the SSC, that is your 10th polynomials lesson, which will come as quadratic equation. There you will be facing quadratic polynomials. Okay उधर quadratic polynomials आने वाला है, so where you will be solving quadratic polynomials by division method। तो ये यूज़ होएगा, नॉर्मल डिवीजन मेथड यूज़ होएगा, स्क्वायरिंग मेथड एंड कंपेयरिंग मेथड, वहाँ 4-5 मेथड है डिवीजन का। ओके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर ऑपरेशन, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट वहाँ पर ये सब मेथड करना है तुमको, डिवीजन मेथड, स्क्वायरिंग मेथड, कंपेयरिंग मेथड। नाउ स्क्वायरिंग मेथड एंड कंपेयरिंग मेथड आर मोर और लेस रिलेटेड समवेयर टू लीनियर मेथड ओनली, इसी से आगे ऊपर लेवल का है वो। ओके वीडियो गेम्स में खेलता है ना मोबाइल में, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, हाँ तो ये फर्स्ट लेवल है समझ लो लीनियर मेथड, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल विल बी स्क्वायरिंग मेथड एंड कंपेयरिंग मेथड। तो इसमें जितना भेजा फ्राई होने वाला उसमें डबल बिबल हो जाएगा, उधर भेजा फ्राई विद तड़का मार के हो जाएगा। ओके अगर ये नहीं किया तो भेजा फ्राई या तड़का मार के भेजा फ्राई नहीं होगा, डायरेक्ट हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा तुम्हारा दिमाग का। तो इसलिए ये ज़रूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज 2 मेथड्स इन योर एसएससी बोर्ड। ओके लेट्स कम डाउन टू द टॉपिक डायरेक्टली। हम लोग क्यों कर रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ट्रेनिंग माई स्टूडेंट कि भैया हाँ चल 9th क्लियर कराना है तुम लोगों को, फीस से मतलब है, वैसा नहीं है। आई एम ओनली टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग सो दैट कि भैया 10th में जब तुम लोग जाओगे अगर मेरे पास हो तो वेल एंड गुड, नहीं है अगर ये बच्चे ऐसे निखट्टू और क्या बोलते हैं ना डम्बो बच्चे अगर मेरे पास रहते हैं तो ओके अच्छा है, और किसी और के पास जाते तो और भी अच्छा है ट्यूशन में। ओके मेरे पास कुछ दूसरे अच्छे समझदार बच्चे आ जाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा।
लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तुमको ये कोई नहीं समझा सकेगा अगर ये क्लियर नहीं है तो। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर स्क्वायरिंग मेथड एंड कंपेयरिंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर है। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। द इक्वेशन गिवन इज 2y रेज टू 4 माइनस 3y क्यूब प्लस 5y माइनस 4। बराबर देख रहे हो, इज इट इन इंडेक्स फॉर्म? 4 3 नहीं, स्क्वायर टर्म्स मिसिंग है यहाँ पर। बराबर, लेकिन अगर इधर स्क्वायर टर्म मिसिंग भी है तो वो हम लोग ऑटोमेटिक आ जाता है। इधर अपने को इंडेक्स फॉर्म लेने का ज़रूरत नहीं है सिंथेटिक डिवीजन के ऐसा। वी कैन स्टार्ट विथ वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड। ओके, यर व्हाट यू हैव टू डू, एक ये है तुम्हारा और दूसरा दिया हुआ है योर डिवाइजर इज y माइनस 1। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट खोल के y का वैल्यू लिया था, यहाँ वैसा कुछ नहीं करना। यर यू हैव अगेन हैव टू यूज़ योर मल्टीप्लिकेशन ओनली। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर, आई विल कॉल इट डिवाइजर और d। ओके, so when in the explanation when I say d or divisor, that means this particular y minus 1. okay, you have to multiply your d with each and every element of this equation one by one। लेकिन ये multiply करने के टाइम थोड़ा बैलेंस करने का भी ज़रूरत है। so let's start with the first step. we are multiplying d with the first part, that is 2y raised to 4। इसको multiply करेगा तो क्या हो जाएगा, instead of 2y raised to 4 we'll write 2y cube। why? because 1y already अंदर है minus 1, so when we open the bracket this will become 2y raised to 4 minus 2y cube। बराबर है। इक्वेशन में गड़बड़ हो गया, क्यों? बिकॉज इधर 2y क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस 2y क्यूब एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बट वी डोंट हैव टू अलाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2y क्यूब को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से वी हैव टू ऐड प्लस 2y क्यूब। कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है, जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है उसी नंबर को बैलेंस करने के लिए इक्विवेलेंट उसका डालना है। ओके, रियल नंबर में किया था ना कॉन्जुगेट ऑपोजिट, तो माइनस 2y क्यूब है तो उसके अंदर प्लस 2y क्यूब ऐड कर दो एंड बाकी का एज इट इज़ लिख दो, माइनस 3y क्यूब प्लस 5y माइनस 4। नाउ दिस इज़ योर स्टेप, लुक एट दिस स्टेप वेरी केयरफुली। क्या दिख रहा है यहाँ, 2y क्यूब कॉमन दिख रहा है, कैन वी ऐड देम, प्लस 2 माइनस 3 becomes minus 1, so here your equation becomes 2y cube into bracket y minus 1 bracket close minus y cube plus 5y minus 4। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया अपना डिवाइजर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मल्टीप्लाई योर d with the cube element, that is minus y, so we'll do it as 2y cube into y minus 1 as it is। ये स्टेप हो गया, इसको अभी चेंज नहीं करना है, लास्ट तक चेंज नहीं करना है। ओके, माइनस वाई क्यूब, ओके, इनटू, तो अभी इसको जब इनटू करना है तो वील टेक इट एज वाई स्क्वायर इंटू वाई, सो दैट वी गेट वाई क्यूब वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट, देन बट वी गेट अगेन वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा, दिस इज माइनस वाई स्क्वायर एंड इंटू माइनस 1, दैट विल बिकम प्लस वाई। तो यहाँ अपने को प्लस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, बैलेंस करने के लिए विल पुट माइनस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा ओवर ईयर अपनी तरफ से, सो दैट इक्वेशन बैलेंस हो जाता है एंड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन डज नॉट चेंज। बराबर, देन प्लस 5y माइनस 4। समझ में आया? एज इट इज, जो बचा हुआ कुछ है उसको वापस लिख दो ऐसे ही। अभी ईयर लेट्स सी क्या हो जाएगा, 2y क्यूब इंटू नेक्स्ट स्टेप विल बी y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1, ये हम लोग ने कर लिया है। लेकिन ये वाई स्क्वायर था, अंदर प्लस वाई स्क्वायर था, बाहर माइनस वाई स्क्वायर था। बराबर है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक अपना स्क्वायर टर्म मिसिंग था ना, इसके लिए यहाँ कुछ बैलेंसिंग करने के लिए नहीं है अपने पास, जो हम लोग करते थे प्लस माइनस कर रहा था, इधर नहीं है बिकॉज अपने पास स्क्वायर टर्म था ही नहीं यहाँ पर। तो इसको एज इट इज़ कंटिन्यू करो। वाई स्क्वायर और वाई में क्या कॉमन आ गया, अगेन मल्टीप्लाई दिस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई माइनस 1 एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर टर्म अपने पास था नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली अपना नेक्स्ट स्टेप
प्रोसीड करते हैं। सो y इंटू वाई माइनस वन, वाई इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, माइनस वन से मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस एंड माइनस वन बिकम्स माइनस वाई इंटू माइनस वन विल बिकम प्लस वाई, इधर प्लस वाई आता है बराबर। अब प्लस वाई है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को बाहर माइनस वाई लेना पड़ेगा अलग से, प्लस 5y माइनस वाई प्लस 5y माइनस 4, दिस इज़ योर एक्चुअल स्टेप। बहुत लंबा हो रहा था, मैंने भी शॉर्टकट मारा है। ओके, सो माइनस वाई प्लस 5y बिकम्स 4y प्लस 4y, समझ में आया, प्लस 4y कैसे आया इधर, एंड माइनस 4 तो एज इट इज़ रह जाएगा बेचारा। ओके, सो नाउ योर इक्वेशन बिकम्स 2y क्यूब इंटू वाई माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन माइनस 4y माइनस 4। ओके, सो अभी इसमें क्या करना है, 4y को हम लोग को अगेन y माइनस वन इंटू करना है। क्यों, बिकॉज जब तक y टर्म है तब तक यू हैव टू मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को बेचारे को छोड़ देने का, कांस्टेंट के अंदर y नहीं है। सो एनीवे वो डिवाइड नहीं होगा y माइनस वन से। इफ़ वी आर डिवाइडिंग विथ y माइनस वन वी नीड टू हैव वन y एटलीस्ट इन द डिविडेंड। सो हियर अगेन विल मल्टीप्लाई y इंटू वाई माइनस वन बराबर। So here we have 2y cube into y minus 1 minus y square into y minus 1 minus y into y minus 1 plus 4 into y minus 1 बराबर। ये लास्ट में जो माइनस 4 रह गया था इसको छोड़ दो, बिकॉज वी डोंट नीड दिस, दैट विल बी योर रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ तक हो गया, इसके आगे हम लोग को कोई स्टेप नहीं करना है। नाउ फोकस हियर केयरफुली, व्हाट इज़ द कॉमन पार्ट, y माइनस वन इज़ कॉमन, y माइनस वन को हम लोग कॉमन ले लिया, और बाकी जितना भी है चारों एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ये चारों नंबर्स को, वेरिएबल को या कंपोनेंट को, वट एवर यू कॉल इट, ये चारों कंपोनेंट को विल पुट इट इनटू अनदर ब्रैकेट सो दैट इट इज़ मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लिकेशन ही है ना। सो विल डू इट y इंटू वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट वी हैव 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस 4। when you open this, automatically when you open this bracket, automatically ये चीज़ आ जाएगा, बैलेंस हो गया पूरा बराबर। इसको हम लोग भूल चुके हैं, ज़रूरत नहीं है अपने को, बराबर है, वो भूलना ही है वो। अभी यू आर लर्निंग द मेथड, तो जस्ट लर्न कर लो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जब हम लोग ये ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4y माइनस 4 आ ही जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल वी आर गेटिंग दिस y इंटू वन, और ये जो मिल गया ना, सो y इंटू वाई माइनस वन इज़ योर डिवाइज़र, एंड ये जो मिला है दिस इज़ योर क्वोशंट। लीनियर मेथड से डिवाइड करने के बाद अगेन वी आर गेटिंग अ क्वोशंट। अगर डाउट है इस आंसर के ऊपर तो सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करके देखो या नॉर्मल डिवीजन से डिवाइड करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, लीनियर मेथड समझ में आया। सो फाइनली तुम्हारा डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज जो हम लोगों ने माइनस 4 छोड़ दिया था उसको भी माइनस 4 इधर लगा दो, इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा, बराबर है। समझ में आ गया, लीनियर मेथड क्लियर है। चलो विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके, जिसको लीनियर मेथड अगर क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड कर लो 10-15 मिनट, जहाँ से मैंने शुरू किया था लीनियर मेथड वापस से 2-3 बार देख लो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना इलेबोरेटली यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, 25 मिनट तो इधर ही हो गया, इधर अपने को 4 डिवीजन कवर करना है, मैं ऑलरेडी सब सॉल्व करके रखा हूँ तुम्हारे लिए। ओके, और डिवीजन और भी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, सो मेक श्योर कि ये ख़त्म हो जाएगा। 3.3 सेट हम लोग ख़त्म करके 3.4 भी आज ही ख़त्म करेंगे, सब कुछ ऑलरेडी रेडी है। 3.4 तो एकदम बच्चा लोग का है, तो यहाँ पर फोकस करो। अगर जिसको नहीं समझा है लीनियर मेथड को 2-3 बार सुन लो, ध्यान से रिपीट करके वापस से। ओके, उसको ध्यान से रिपीट करके सुन लो, बिकॉज जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नहीं है, रादर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर प्रॉब्लम नंबर 3.3 का ही सेकेंड वाला प्रॉब्लम का मैंने उसको आपका ये कर लिया है, एज आई हैव टेकन दैट एज एन एग्जाम्पल एंड आई हैव सॉल्व्ड इट। ओके, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा अलग है।
ओके नहीं ये वाला नहीं है, कौन सा उठाया था यार मैंने एग्जाम्पल में? हाँ सेकेंड वाला इधर है नहीं, लेकिन इधर भी +5 आ रहा है लास्ट में, इधर -4 था। तकरीबन सिमिलर सम्स है आगे आपको 3.3 के अंदर। ओके लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.3। दे हैव गिवन यू 2 पॉलिनोमियल्स दैट इज 2m²। अरे ब्राइटनेस क्यों बार बार कम हो जा रहा है, बैटरी तो है काफ़ी कुछ। 2m² - 3m + 10 डिवाइडेड बाय m - 5। ओके नॉर्मल डिवीजन से तो हम लोग उसमें एक्सपर्ट है, वी आर डूइंग इट सिंस 7th स्टैंडर्ड, 7th 8th में किया था हम लोग ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बराबर। उसके अंदर तो मेरे बच्चे लोग का 4 बार मैंने टेस्ट लिया था, सबने फुल आउट ऑफ फुल लिया था, स्पेशली श्रीराम, वो तो पहले टेस्ट से ही फुल ले रहा था बराबर। ही टुक 20 आउट ऑफ 20, 40 आउट ऑफ 40 इन ऑल द टेस्ट। पॉलिनोमियल्स का तो मास्टर था वो। चलो ही वॉज नॉट इन योर बैच, अभी वो 10th में। चलो 2m² - 3m + 10 यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्यों डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन इंडेक्स फॉर्म। (2), (1), (0) बराबर इंडेक्स फॉर्म करेक्ट है, सो डायरेक्टली इसका कोएफिशिएंट फॉर्म ले लो। 2 - 3 and 10, ये सबसे छोटा प्रॉब्लम है 3.3 का। ओके सिंथेटिक डिवीजन, x - 5 = 0, therefore x = +5, so that is +5 will be your divisor। 5 2 को नीचे लेके आ जाओ एज इट इज, बिकॉज यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट विथ 5 2s are 10, दैट इज सी आई हैव रिटन हियर इनटू 5 दैट गिव्स यू 10, सो 10 यहाँ लिखने का है। एंड ऐड करो -3 + 10 you get +7, so again 7 5s are 35। ओके 10 है प्लस 35 बिकम्स 45 हो गया। सो अब ये 45 को क्या करने का, दिस 45 इज द लास्ट थिंग, सो 45 इज योर रिमाइंडर। एंड व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? अरे यार उड़ रहा है, उधर से कुछ दो ना मेरे को, जरा एक आध वाटर प्लीज़, जल्दी 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 से। कुछ नहीं वो चलता है अपने ही बच्चे से। अरे इतनी बड़ी बॉटल नहीं, दवाई की बॉटल है ना छोटी मोटी। हाँ चलो सैनिटाइज़र ज़्यादा कुछ काम यूज़ नहीं हो रहा है, बिकॉज बाहर जाता नहीं हूँ, ये इसी काम आ जाएगा पेपर वेट करके। ओके सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, कहाँ तक किया था हम लोगों ने? 45 इज योर रिमाइंडर। ओके सो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? इधर क्या आया अपने को 2 and 7, सो 7 विल बी द कांस्टेंट एंड this will be the value, first value of the variable, that is m⁻1, so that is 2m + 7। okay for your reference I have written down the quotient over here, q is equal to 2m + 7 and remainder is 45 बराबर है। अभी यही चीज़ को we have to do it again with linear division। linear division, let's start। here the divisor is m - 5, okay so we'll use that only। 2m² - 3m + 10 divide, here I have written for you, okay divide all variable factors with divisor and balance equation so that value remains constant। you have to pay attention that you are multiplying it with the variables varying component, but at the same time you are balancing each and every step so that the value remains constant। okay दिस इज़ द मेन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशन। अभी समझ में आ जाएगा मेरा एक्सप्लेनेशन तुमको। यहाँ पर इतना एक एक्सप्लेनेशन अगर टेक्स्ट बुक में वो लोग ने लिख लिया होता ना तो योर लाइफ विल बी वेरी इजी, और ये कभी कैंसिल नहीं करता था बोर्ड। सो नाउ वी हैव फर्स्ट वन इज 2m², तो हम लोग 2m बाहर लेंगे बिकॉज इनटू m - 5, सो दैट इज माइनस मल्टीप्लाई करेगा व्हेन यू ओपन इट, सो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स 2m² माइनस कितना हो जाएगा, 5 2s are 10, 10m हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग -10m एक्स्ट्रा, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग +10m एक्स्ट्रा लिख देंगे। यहाँ पर +10m बाहर लिख दिया हम लोग ने एक्स्ट्रा, दिस इज समथिंग विच यू हैव एक्स्ट्रा फॉर बैलेंसिंग बराबर। बाकी का इक्वेशन क्या है, -3m + 10, -3m + 10 लिख दो एज इट इज। सो योर इक्वेशन, पे अटेंशन हियर, 10m - 3m विल बिकम +10 - 3 becomes +7, so we have 7m। okay your equation becomes 2m into m - 5 bracket close plus 7m + 10। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी कंप्लीट हो गया, बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी 7m का नंबर है बराबर, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग m इंटू 5 से। सो योर इक्वेशन बिकम्स 2m इंटू ब्रैकेट m माइनस 5 प्लस 7 इंटू m माइनस 5। वाई? बिकॉज m अंदर गया है। when you open the bracket, when you're putting this bracket, you also have to pay attention that what will be the value when you open the bracket. So when you open the bracket, this will automatically become 7m। खाली चेंज क्या होएगा? कांस्टेंट चेंज होएगा। 7 5 35 माइनस 35 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग प्लस 35 डाल देंगे। बराबर है। नंबर बड़ा है लेकिन फिक्र क्या है, जेब से थोड़ी डाल रहा है, अपने को लिखने का है ना कुछ भी। उधर भले 35 लाख आने दो नंबर माइनस में, हम लोग को उसको पॉजिटिव करना है। जेब से पैसा थोड़ी जा रहा है, लिखने का बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। सो वी हैव 35 प्लस 10। ओके, सो नाउ प्लस 35 एंड प्लस 10 जो बचा हुआ इक्वेशन का था, डोंट यू थिंक वी कैन ऐड देम? तो ऐड कर लो। जब सोच रहा है तो कर दो, नेकी और पूछ पूछ कर देने का। 35 प्लस 10 45 हो गया। योर इक्वेशन बिकम्स 2m इंटू m माइनस 5 प्लस 7 इंटू m माइनस 5 प्लस 45। ओके, सो ये 45 लास्ट का, इसको छोड़ दो। दिस इज योर रिमाइंडर। बैलेंस दिख रहा है? 45 आ गया रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? m माइनस 5 इज वन ब्रैकेट एंड दिस टू वी टेक इट इनटू अनदर ब्रैकेट, दैट इज 2m प्लस 7 आ गया था इधर। योर क्वेश्चन वॉज 2m प्लस 7 रिमाइंडर, दोनों बैलेंस हो गया। दैट मीन्स योर सिंथेटिक डिवीजन एंड लीनियर डिवीजन परफेक्टली सॉल्व हुआ है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 इज अ बिग प्रॉब्लम। वी हैव x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अरे वाह, ये तो ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में, रेज टू 4 रेज टू 3 रेज टू 2 रेज टू 1 रेज टू 0, इंडेक्स फॉर्म परफेक्ट है। सो हमको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का झमेला चला गया। वी डायरेक्टली कैन टेक द कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म इज 1 2 3 4 5। नंबर भी बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5। क्या दिया इधर इन लोगों ने? डिवाइड बाय x प्लस 2, दैट फोर x इज इक्वल टू माइनस 2। बराबर, इफ़ आई टेक x प्लस, ओके यहाँ समझ लो, इफ़ आई टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन देयर फोर x विल बिकम माइनस 2। ओके, सो इसका हम लोग को x का वैल्यू लेना है एज अ डिवाइजर माइनस 2 एंड राइट द डिविडेंड ईयर 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा गैप दे दे के लिखो। हाँ, थोड़ा दूर दूर लिखने का है। अगर नज़दीक लिखोगे इतना गिचड़ी और कचरा हो जाएगा, तुमको खुद को समझ में नहीं आएगा तुम लोगों ने क्या किया है। सो इट्स ऑलवेज बेटर यू गिव इनफ स्पेस बिटवीन ऑल दी कोएफिशिएंट्स that you are taking from the dividend। ओके, कोएफिशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर, ऐसा लग रहा रहेगा ना सर कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं। बेटा ये लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी मराठी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ये, क्योंकि ये एल्जेब्रा लैंग्वेज है, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट का हम लोग को क्या करने का रहता है? एनी ऑपरेशन नहीं, इसको सीधा नीचे लेके आओ, डाउन एरो की समझते जाओ। मैंने हर जगह नहीं डाला है बिकॉज ये केजी का बच्चा नहीं है तुम लोग समझाने के लिए। 1 को नीचे लाने का तो एरो साइन दिखाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली ले लो 1 इधर। 1 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 2, सो माइनस 2 गोज हियर। इसको ऐड करो, प्लस 2 माइनस 2 0 आ गया। ओके, 1 इंटू 0 विल बी अगेन 0। 3 से प्लस करो, 3 आ गया नीचे। 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ माइनस 2 इंटू 3, सो विल बी माइनस 6। माइनस 6 डालो, 4 के नीचे ऐड करो, माइनस 2 आया। बराबर, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स 4। 5 प्लस 4 9, 9 इज़ योर रिमाइंडर। समझ में आया? 9 इज़ योर रिमाइंडर। तो अभी इसका क्या हो जाएगा आंसर? दिस विल बी कॉन्स्टेंट, दिस विल बी एक्स टर्म, दिस विल बी एक्स स्क्वायर टर्म एंड दिस विल बी एक्स क्यूब टर्म। सो योर आंसर इज एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अभी इधर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर दिया तो ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा है ना? ओके, सो फाइनली योर आंसर विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। वाई? ये 0 का टर्म हटा दिया हम लोगों ने और क्वोशंट लिख लिया। समझ में आ रहा है? अभी सेम आंसर्स वी हैव टू वेरीफाई विथ लीनियर मेथड ऑल्सो। अभी लीनियर मेथड चालू हो गया। x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विथ x प्लस 2 ईच एंड एवरी नंबर। सो x रेज टू 4 विल मेक इट एज x क्यूब, एक x अंदर गया, इंटू x प्लस 2। बराबर, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम्स x रेज टू 4 प्लस क्या हो जाएगा?
2x एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2x क्यूब एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो यू आर गेटिंग 2x क्यूब एक्स्ट्रा। उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2x क्यूब हम लोगों ने लगा दिया। ओके, माइनस 2x क्यूब हम लोग ने इधर लगा दिया, प्लस 2x क्यूब। बाकी का सब टर्म्स जितना भी है एज इट इज़ लिख लो, प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर। डू ओनली वन स्टेप एट अ टाइम। हाँ, सब एक साथ मल्टीप्लाई करोगे खिचड़ी हो जाएगा, और कभी रॉन्ग, कभी नहीं, हर बार ही रॉन्ग होएगा। आई वॉज अबाउट टू से कभी रॉन्ग हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा रॉन्ग कहाँ गया है। हर बार कभी नहीं होएगा, ये हर बार रॉन्ग होएगा अगर इफ़ यू गो फॉर अ शॉर्टकट। अर्शदा, पेपर बचाने के लिए सब एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। शॉर्टकट मारने की बहुत ख़राब आदत है तेरे को, ये नहीं होना चाहिए। चलो गो स्टेप बाय स्टेप। देन वी हैव एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, ये माइनस 2x क्यूब बाहर आ गया था, प्लस 2x क्यूब बाहर आ गया था बराबर। ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आएगा तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया उसको। देन वी हैव 3x स्क्वायर, ऑलरेडी जो इक्वेशन का था 3x स्क्वायर नीचे आया, प्लस 4x प्लस 5। सो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। सॉल्व हो गया, बैलेंसिंग भी सॉल्व हो गया पूरा। सो नाउ इसका हो गया, अभी इसका नंबर आएगा। वी टेक 3x आउटसाइड अगेन इंटू x प्लस 2 माइनस 6x क्यों लिया है मैंने, ध्यान से देखो। 3x इंटू एक्स विल बी 3x स्क्वायर एज इट इज़, ओके, बट 3x इंटू प्लस 2 करेगा तो वी आर गेटिंग 6x प्लस 6x एक्स्ट्रा। ये प्लस 6x एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको नलीफाई करने के लिए एंड कीप द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन कॉन्स्टेंट वी ऐड माइनस 6x ओवर ईयर बराबर। ऐड करो फुकट में, ऐड करने का, बैलेंस करने का, टेंशन नहीं लेने का। प्लस 4x प्लस 5। नाउ पे अटेंशन एट दिस पर्टिकुलर नंबर, यू हैव माइनस 6x प्लस 4x दैट इज माइनस 2x। समझ में आया ये माइनस 2x यहाँ से कैसे आया है, by adding these two numbers. So your final equation becomes x cube into x plus 2 plus 3x into x plus 2 minus 2x plus 5. Now this is also an x term, so we have to multiply this also with x plus 2. यही हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप में किया है। We have done 3x cube plus x plus 2 into x plus 2 plus 3x into x plus 2 minus 2 into x plus 2 plus 4 क्यों आया इधर, माइनस 2 इंटू एक्स विल बी माइनस 2x, बैलेंस ये हो गया। 2 2s are 4 दैट इज माइनस 4, सो वी आर गेटिंग माइनस 4 एक्स्ट्रा। ओहो, माइनस 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने प्लस 4 डाल दिया बराबर। सो आउटसाइड वी आर हैविंग प्लस 4 प्लस 5, प्लस 4 प्लस 5 बिकम्स 9। ओके, राइट इट इन करेक्ट फॉर्म अगेन। एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 9। सो दिस 9 इज़ योर रिमाइंडर। समझ में आया क्यों छोड़ने का है, 9 इज़ योर रिमाइंडर। वी हैव टू टेक ओनली, अब व्हाट आर द कॉमन ब्रैकेट्स, x प्लस 2 हम लोगों ने अलग ले लिया डिवाइजर को, एंड वी टेक दीज एलिमेंट्स फ्रॉम यर एज द क्वोशेंट, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 बराबर। क्वोशेंट है, मैच कर लो, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, क्वोशेंट सेम टू सेम आया है, रिमाइंडर सेम है 9 9। दैट मीन्स तुम लोग का सम्स एकदम 100% राइट है बराबर। वीडियो इज़ नाउ प्रिटी लॉन्ग, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 3 4 5 6 अभी अपने को और 4 कवर करना है, वो चारों प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।